शास्त्र में कहते हैं कि there is nothing more important than Mata Pita Guru Devam. This is the most important thing in our lives. Devam, Bhagavan, we all have in our lives. That is a constant. Some call that divine one by Rama, some by Krishna, some Allah, some Jesus. वो एक ही है. लेकिन माता पिता और गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं. एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि I have got such divine parents and a divine guru as well. Dear Islands, I dreamt that maybe one day I'll go to Mumbai, and I dreamt that one day maybe I will get to sing one song with him, that one day I'll get to perform once with him. ये dreams था ये. And these dreams, thanks to my parents, my family, became a reality. And thanks to him, through my childhood, through university, he inspired me to perform, to practice, to riyaz. And he inspired me to do what I'm doing today. So I'm forever grateful to him, to my Guru. And the most important thing is he's been a mentor for me, not just for music but in life as well, because he's such an exemplary to the entire world, to humanity. No matter what happens, he always smiles. He's always positive. And this is what he has taught me and all of us. And I'm so grateful. I'm so grateful to you. And this album, has been so beautiful. 18 months of composition by Prithvi Gandharv, who will be on stage soon. Prithvi and his has composed beautiful Sufi song, 2 ghazals, a geet, 2 bhajans, and it's been a wonderful journey with all of us. The entire team's worked very hard. Gaurav as the programmer, sound the arranger, Koryuga, who has done the recording and the mixing and mastering, Gitesh, Parth, Pratham, the entire creative team. So many people have been involved. It's not just us. It's a collaborative effort. So I want all of you to give all of them who will come on stage later on a very big round of applause. An album comes together after a lot of hard work from everybody. Koryuga, kahan hai aap? Aye, please come on stage. And so it's a team effort, and of course you saw this wonderful video. Prachi ji was incredible. Thank you, Prachi ji. Come on stage. Gitesh, Parth, Pratham, please come on stage as well. So it's been a team effort. It's a team effort, and really it's been a wonderful journey. For an artist, an artist sacrifices a lot, and he or she doesn't sacrifice alone. So I have to, thank my family, my mother, my father, my wife Krupali. Krupali is here. Come, Krupali. Saisha and Meera, my daughters. Mom, Dad, come. Sheetal, my sister, Chetan, Siddhant, Hamish, come. Everyone come on stage.
it's a team effort. Everyone sacrifices, everyone does so much. So I'm very thankful to them, what they do for me. Come. Give them a round of applause, everyone. And I'm so grateful that Pandit ji could be here with us today. It's just a few months back when he was also here for the unveiling of Dil Pareshan Karta Hai. And I would have done something very good in my past life to have Pandit ji here on both my recent album releases. So please give 2 rounds of applause to Pandit ji. I'll go in soon to the album on there. So thank you to each and every one of you for gracing this occasion. Thank you so much. And I'll now pass the mic to Guruji. And before I do that, I'll take his namaskar as well. गुरु दोनों तरह का कर उपाय गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। ये संबंध है गुरु शिष्य। तो मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनके परिवार से, बहुत प्यारा रिश्ता, और वो सुमीत की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ में गाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप माइन्यूटली सुने तो सुमीत ने मुझसे अच्छा गाया है, और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर मुझसे अच्छा नहीं गाता तो मेरी सक्सेस नहीं थी। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वही बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह रियाज चल करते रहें, गाते रहें, और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका बजाते रहें। हमारे बीच पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ, और मुझे वैसा प्यार भी देते हैं। इनका पूरा परिवार वही मुझे प्यार देता है। सतगुरु जी पधारे हैं, मेरा प्रणाम। हमारे बीच बहुत से कलाकार आए हैं, एक एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे, लेकिन यही कहना चाहता हूँ सर अपना समझते हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर अशर्मियाँ तो नहीं बट रही है, रेवड़ियाँ भी नहीं बट रही है, लेकिन यहाँ पर प्यार बट रहा है, और आप लोगों का ब्लेसिंग हम सबको मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए प्राची ने क्या डांस किया, कमाल। एक बार जोरदार तालियां प्राची, क्या डांस किया, क्या बना दिया। ये चतुरंग मैं बचपन से अपने पिताजी से सुनता रहा, और मैंने पिताजी के साथ में गाया, उनसे सीखा। और ये चतुरंग में यही होता है कि 4 अंगों का इसमें समावेश है, सरगम है, शब्द है, तबले के बोल है, मृदंग के बोल है, और उसके साथ साथ उसमें और कुछ छेड़ना नहीं होता है, उसकी लय बढ़ती जाती है। ये चतुरंग गाने का है। तो इसमें 3 लय आपने चतुरंग की सुनी, तो अंत में जाके फिर जब प्राची आ जाती है फिर तो क्या ही बात है, क्या मजा आता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बधाई। क्या ही कहूँ। सबसे पहले तो गुरुजनों को मेरा नमस्कार। Everybody here from the fraternity, everybody here is such fantastic artists, and I feel so blessed. अनूप जी, आप ये जो देन और नाउ का फोटो है ना, वो मेरे पास भी है अनूप जी के साथ। I was all about, my father is here, my parents are here. I was all about just 5th 4th स्टैंडर्ड इस्कॉन में मेरा परफॉर्मेंस था, और अनूप जी थे, और अनूप जी के साथ मेरी एक तस्वीर है। टुडे आई एम अ पार्ट ऑफ दिस composition which your father has composed. I mean, what more can I ask for? I feel eternally blessed. Thank you so much, Sumit.
for making me a part of this. Thank you, Prithvi. मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गणेश हीरालाल जी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, बिकॉज ऑफ whom this would have not been possible. So I thank them सबसे पहले, and of course God that to have made me an artist, and of course just you all who give me so much love for so many years, and I just hope कि this continues. Anup ji, thank you so much once again. अच्छा, सबसे पहले यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. As प्राची जी just said कि उनका आपका एक्सपीरियंस जो अनूप जी के साथ इस्कॉन का है, मेरा भी इस्कॉन में मैं पहला कॉन्सर्ट मैंने किसी आर्टिस्ट का सुना तो वो अनूप जी हैं, और जिसके लिए मुझे मेरे पापा पहली बार वो परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ, और ऑडियंस में आई was blown away with his energy and his jokes and his wit and his music and performance. और आज ये मौका मिला, थैंक्स टू सुमित भैया, कि हमने एक एल्बम किया जिसमें हम मैंने गज़ल भी, भजन भी, क्लासिकल भी और भी सूफी भी किया हमने, और वो अनूप जी ने गाया और आपने गाया. मुझे आई जस्ट वांट टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल सीकिंग blessings from everybody, Pandit ji, अनुराधा जी, जसविंदर दीदी, घनश्याम अंकल sitting there, and अशोक अंकल जी, सभी सारे सुरीले, प्लीज, and my friends here, सबका सबसे प्यार और आशीर्वाद चाहते हुए मैं 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत, जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता था. सुमित भाई, अनूप जी, प्राची जी ऑफ कोर्स, बट कोहिनूर दा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर ग्रेट मिक्स. एंड द ग्रेट मैजिशियंस जिन्होंने इस एल्बम पे काम किया है, प्रशांत सोनागरा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. ही इज प्लेड द रिदम एंड ही डन, एंड पार्थ शंकर, सोरांजे धुमाल, अपना मानस दा, एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस जिन्होंने, टेक्नीशियंस, गीतेश पार्थ एंड प्रथम जो कि बैकबोन ऑफ द एल्बम है, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां. And my younger brother Gaurav Singh Bunawat, he's produced the album, so एक बार जोरदार सबको आशीर्वाद आप दीजिए, और इससे ज़्यादा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू.
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले दिन में ऐसा गुरु बनने भी मिले। सब पता एक होता है कि सिस्टम होता है घर में अस्थायी गालियाँ हो गई, कितना अच्छी तरीके से बच्ची की तरह पढ़ा ये सब चीज़ें हम हमारे गुरु को कभी कुछ नहीं कर पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए। हमेशा गाली पड़ती थी, बात करता था, लेकिन प्यार भी करते थे। पैसे नहीं थे तो साइकिल में पीछे बैठा के हुआ। बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करूँगा अगले जन्म में भी ऐसी हस्ती मिले। तो पहले इस होटल में कैसे आ गया ले गया, नहीं तो अपने गुरु क्या बत्ती जला के उनको पूजा करता तो ये एल्बम की शुरुआत किस तरह से हुई है और किस मूड के गाने जिन्होंने नहीं देखा हमारे दर्शक उनको बताएंगे आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की उस पर रोशनी डालेंगे। 40 साल पहले मुझे मिला था ऐसे छोटा सा बच्चा, मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट। फिजी आइलैंड वो देश है उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे, मेरा तो 7-8 प्रोग्राम। और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे, हर प्रोग्राम में आगे सुन रहा है। मैंने कहा यार ये तो अपना बच्चा है, इसको सिखाते। सीखना शुरू हुआ, आज आप उसका असर देख रहे हैं आप। कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गाना, नहीं लगा होगा 2 गाने। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। किया मुझसे अच्छा गाया, जो समझ 7 गाने जो मैंने गाए उससे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है। क्या कहना चाहेंगे कि आपने तारीफ अनूप जी ने खुद ने की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं, ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या माने होता है सर? सबसे पहले तो इनसे छवि नहीं सकता। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला इस मोमेंटो it's been it was a dream as a child to sing like him. As a 3, 4, 5-year-old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he inducted me as a Shishya, when I was just 4-5 years old, it was a dream come true. तो वहाँ फिजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि अल्पी मुंबई एशिया में करियर म्यूजिक। Thanks to Boss Guruji, his mentorship, और his 40 years have been incredible because like I said on stage, you know, he hasn't just mentored me about music, life, about the value of loving, being positive, ये सब जो सिखाया है, and whatever I am today is because of him, because he inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey. And today, this album legacy is a dream come true, you know, because you know you get to release something which is eternal with your guru. So for Shishya, there is nothing more special. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद भी ऐसा नजरें नहीं कहती है। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से प्लान किया सर आपने? ये गाना है पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 का गाना, तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाला, डांस, ये जान बख्शी।
एक अलग ही रंग बख्श दिया है, रंगीन कर दिया है इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को बहुत धन्यवाद। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये सबसे मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी, उसको भी तुमसे जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति दिखाई जाए तो ऐसा गाना गाया। शिष्य जो है अपने गुरु से क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? हमारा जो रिलेशनशिप है लेना देना है ही नहीं, लेना देना नहीं है। This is an exchange of love. This is about music at the center of it. It's like my father, I'm like his son. So जो हमारा प्यार है, represents itself in the way that we sing together. Our relationship. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है सेलिब्रिटीज तो एक से बढ़कर एक क्रिकेट लोग हैं जिनको बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी जब सराहते हैं तो क्या महसूस होता है, क्या फर्क होता है? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे। This is a bond of love in the entire music fraternity. So many people came today. I think it's blessing and relationship with everybody and such a wonderful function. आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने हैं, सभी उम्दा है, क्योंकि अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें जो हो और आप भी बाद में अपना पसंदीदा बताएं। देखिए, चतुरंग तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है, और एक गाना हम दोनों ने मिल के गाया है, तेरी मेहरबानियाँ, वो भी सूफी गाना बहुत अच्छा हुआ है। वो भजन है और दो गजल है, एक गीत भी है। से वो बजवा दे, ये हो जाए, ये हो जाए, वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी अंदर फैंटास्टिक जॉब द म्यूजिक। अच्छा अनिल जी, आपने भी सुनी अच्छी बात की, आज के दौर में संगीत में क्या अहमियत कुछ कम हो गई? मेरे कहाँ कम हो गए, इतने सारे लोग जो आए हैं ये सूफी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ, जैसे आपका हमने देखा बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसे ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ न कुछ कम डाउन नजर आता है। फिल्मों में जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं, अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनार के लिए सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सच्ची बात ये फर्क नहीं। सर ऐसा कहते हैं कौन सा छोड़ छाड़ के अपने यार नहीं सर, सखी बाज बग पैजनी छना ना 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 बाजे मोहन पग पैजनी। आखिरी मैंने मैसेज को अपना आखिरी कैसे आप तय करोगे? इनका आखिरी कंटिन्यू प्लीज। आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग, आपको हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं मिल पाएगा, आप क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भजन सम्राट जो लोग कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट मेरे पिताजी हैं, जिनसे मैं सीखा है, वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना, फकीर आदमी, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम देखें इस तरह, अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। मुझे आपका 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मीठी भी यादें हैं कि खाली सारी मीठी ही यादें होती है? सब प्यार ही प्यार है साथ में। और जो 40 years is a long time. This album is portraying this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम अपना नाम रखते हैं legacy, 40 years of togetherness. It's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many years.
और एज अ 3-year-old child, the joy I had by watching him live in London, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and some love, adoration. आज इंटरनेट के ज़माने पे, सोशल मीडिया के ज़माने पे हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है उसकी डेट। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे थे आपने। इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था वो भी लार्जर देन लाइफ था, ये भी इसी तरह से। ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही म्यूजिक ही सब कुछ लगता है कि आप एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? मैं इनको हल्का फुल्का काम करने नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है। जब स्टैंडर्ड हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया। जो गाया है अच्छा गाया है, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है। तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना है। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हमको देखने को मिल सकता है आप लोग? इसके बाद 50 साल नेक्स्ट मंथ। ब्रिजेश जी, आपको सर जो गाने की लॉन्चिंग की गई उसको काफ़ी लोग पसंद किया है, बहुत अच्छी। अरे 2 बार वीडियो देख लिया और क्या। सर महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें भी आप महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम करूँगा, प्रयागराज में आऊँगा, कई बार आऊँगा उस बीच में, और वहाँ पे एक सवाल, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने आपको लेके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु भी, इसके बारे में नहीं, वो मजाक कर रहे थे। किसी की बात में इसमें विश्वास मत करिएगा, बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो। हमको एक जाकिर साहब के लिए आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी को लगता ही नहीं कि वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति इंसान है, हर कोई उन्हें अपना समझता था। कि आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे, जापान में कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ। जाकिर भाई चले गए, अब ये वहाँ ताज कौन बोलेगा? वही बोला करते थे, वहाँ ताज पर inspiration to all generations. उसके बाद में such a devastating blow for the entire music fraternity, entire music lovers. I pray for your soul. Thank you for inspiring generations across the world, whether it's America, Japan, Australia, दुनिया भर में inspire किया। Inspiration दिया है to take the path of music. कितने तबला प्लेयर्स बोल thank him. किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। कौन हुआ अनूप जलोटा जी और सुनील जी का लेगेसी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सुमित जी को और अनूप जी को ढेर सारी बधाइयाँ। इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है, उनकी शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनूप जी मुझे बचपन से जानते हैं। तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एक एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सब जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस लॉन्च के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूजिकल माहौल। इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की, जब आपका वीडियो देखा लोगों ने तो सुन ये जो एक्सप्रेशन देखने को मिला, आपके मुँह से जो तारीफ सुनने को मिली, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ
यही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने, उन्होंने, कलाकारों ने, गुंजनों ने और अपने साथियों से जो मेरे फैंस रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिया है, और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ। तो आई कैन ओनली से थैंक यू। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है इस तरह के, क्या रिएक्शन थे उसके लिए उस वक्त आपने, और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की थी आपने किस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनूप जी के पिताजी की है, चरुता जी की। तो वही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशिएंट रेयर कॉम्पोजिशन है चतुरंग, जैसे कहते हैं अलग अलग रेयर शामिल है उस कॉम्पोजिशन में। तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन में अपना नृत्य प्रस्तुत कर पाई, और ऑफकोर्स खुशी की बात थी क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनूप जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक लेजेंडरी कलाकार होता है ना, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, ही शुड जस्ट स्टे फॉरएवर, क्योंकि इन्हें कहते हैं गॉड्स चोजन वन, इसीलिए लेजेंड्स कहा जाता है। मतलब बहुत ही दुखद कल का दिन रहा है, और अभी भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाल ही कुछ महीनों पहले उनको मिली थी, काफ़ी सारी बातें भी हुई उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बजाया था उस दिन, और आई कैन ओनली से कि उनको नमन है और बस उसका आशीर्वाद। अच्छा सर, आज जो एल्बम लॉन्च हुआ लीगेसी, आपको कैसे लगा? और ये जो अनूप जी है, सुमित जी है, इनकी जो 40 साल पुरानी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके तहत ये एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहना है? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है, इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को, सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक खत्म हो गया। मगर ठीक है कि अब इन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है, तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं, आज स्पेशली सुनने के लिए आया था मगर मिस कर गया, आगे ज़रूर सुनूंगा। मगर यही मैं कहना चाहूँगा, अब अगला नया साल आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप पहुंच जाते हैं, वही प्यार लोग आपसे करते हैं, क्या रेडी नहीं, फीलिंग तो ऐसा है कि एक काफ़ी सिमिलर ऐसा चेहरा उनका बना हुआ है, और जब भी ज़रूरत होती है प्रधानमंत्री के चेहरे की, कोई मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, रियलिटी शो हो, टीवी शो, तो हमें बुलाया जाता है। तो बहुत सारे फिल्म मैंने कर चुका हूँ, तो ये कर रहा हूँ। ज़्यादा करके बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। जब भी इलेक्शन है तो फिर दिल्ली से लेकर गली तक पहुँचता हूँ और कैंपेनिंग करता हूँ। मेरा कैंपेनिंग देखने के लिए लोग बहुत भीड़ करते हैं, तो ये काम करते रहता हूँ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी मैं जाते रहता हूँ, और मोदी जी के विचार जो है वहाँ भी मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे लीगेसी एल्बम सॉन्ग में आप आई, रिलीज हुआ, अरुण जी हमारा तमाम सेलिब्रिटी आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड अ शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ, और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में
इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की, सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक्शन बहुत सारे के साथ आपने काम किया और कैसा एक्सपीरियंस है तो बताइए, साथ में आने वाली जो दो Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है, तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरी एक्शन सीक्वेंस रहे हैं वो सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ। इसके पहले रवि तेजा सर के साथ में भी मैंने सॉन्ग किया था। आने वाले समय में आप मुझे कुछ तमिल फिल्मों में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे, एंड देयर आर फ्यू वेब सीरीज दैट आर रिलीजिंग। माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑन Amazon Prime विद पंकज त्रिपाठी सर। इट्स कॉल्ड कोलकाता टेल्स। मैं इंजीनियर हूँ। मेरा जन्म खजुराहो, जो कि लैंड ऑफ कामासूत्रा के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म खजुराहो में हुआ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, फिर मैंने MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस रन किया फॉर 2 years। फिर मैंने 6 साल तक मीडिया में मैं रही। मैंने इवेंट्स होस्ट किए, वहाँ पे सिंगिंग भी की, एंड देन इवेंचुअली आई डिड माई फर्स्ट शो, जिसकी वजह से आई बिकेम द मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस इन 2020। उसके बाद से फिर मैंने साउथ की तरफ रुझान लिया, कई सारी रीजनल फिल्म्स करी, गुजराती फिल्म भी करी, और अब मैं बॉलीवुड और साउथ में काम कर रही हूँ फिल्मों में। थैंक यू सर। यहाँ अनूप जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और बहुत सालों से उनकी हर एक इवेंट का हिस्सा हूँ। और सुमित भाई भी उनके जो चेले हैं, शिष्य हैं, वो भी अभी मेरे दोस्त बने हुए। लास्ट वीक मेरे ऑफिस आए थे। मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अवार्ड उनका जो साथ है 40 साल का गुरु शिष्य का, उसके लिए उन्हें कुछ कर सकते। सब नया साल आ रहा है, मीडिया को जानना चाहते हैं कि नए साल में कहाँ पार्टी देने वाले मीडिया राइट ईयर, और आपका नया साल सुखमय हो, आपका परिवार और फैमिली और सबको सुख और आनंद समृद्धि और स्वास्थ्य है। सर और सुमित जी का ये नया जो गाना है, एक एल्बम भी आ रहा है, आप भी शरीक हुए और उन्हें आशीर्वाद देने आए, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। और आज की जो महफिल, जो रंग आज था, बहुत ही खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा, तो हमारे प्रिय भाई उनकी ये नई एल्बम जो आ रही है, बहुत ही खूबसूरत जो बंदिश उन्होंने गाई, बहुत ही प्यारी बंदिश थी उनके पिताजी की। उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है जो उसका म्यूज़िक किया गया, जो हमारे टैलेंटेड बच्चों ने सीखा, उन्होंने उसका संगीत जो है सजाया उस कॉम्पोजिशन को, और ऐसी कॉम्पोजिशन आती रहे और इस तरह का संगीत जो है आता रहे, तो जो है संगीत का स्तर जो है वो मतलब उस लेवल का जो कि हम लोग सुनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक भी वैसा ही संगीत सुने, क्योंकि बहुत तरह का संगीत, नए तरह की चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। कुछ नया, कुछ लोग ज़्यादा डांस करना चाहते हैं उस तरह से, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की बंदिशें आनी भी बहुत ज़रूरी है। उससे सीखता रहे। और देखिए उसमें कथक का जो पूरा उन्होंने साथ में उनके शिरकत की है, और कितना खूबसूरत लग रहा है कि क्लासिकल बंदिश के साथ कथक का होना है। ये एक बहुत ही प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं वैसे ये, तो इनको हम अपना समझिए कि नींव समझते हैं इसको, ये और ये स्तंभ है,
जिसपे हमारा संगीत जुड़ा है, इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये आज भी कई बच्चे जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बैठ के सुनते हैं अलग अलग मीडिया पर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जो है संगीत सीख करके आ रहे हैं और संगीत को जिंदा रख रहे हैं। आगे ये चलता रहे, ऐसा ही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। और इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नए वेंचर के लिए, और ईश्वर आपको कृपा बनाए। थैंक यू धन्यवाद। लेगेसी ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एल्बम है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है। सुमित टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है, बहुत बहुत बढ़िया है। गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नज़र आ रहे हैं। सब ब्यूटीफुल। और मेरी हार्दिक शुभकामना है सुमित जी के लिए कि ईश्वर उनको खूब कामयाबी दे, संगीत के क्षेत्र में खूब नाम करें, और अनूप जलोटा जी जैसे दिग्गज भजन सम्राट गायक का हाथ वरद हस्त उनके ऊपर है, उनके सर पे है, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो मेरी हार्दिक शुभकामना लेगेसी एल्बम के लिए सुमित टप्पू जी को और आदरणीय अनूप जलोटा जी को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।